That's Riven taken the outside edge. And the first time ever, I request 12th man of both the sides to kindly come at the commentary box. 12th man of both the sides, kindly come at the commentary box. And Kumteshwar get off the mark with those 2 runs. An outside edge flying towards the third man region. Oh, that was pacey. Bowled with extreme pace. A beautiful delivery here.
Okay, welcome back. Due to power cut, we had some issues with the YouTube live from tenniscricket.in. We are live again. The power has resumed. A wonderful looking shot just for a single. At the same time, I would like to welcome Sau Namrata Gawas, Sarpancha of Navelim Village Panchayat. She has just arrived to witness this opening match of the tournament. The first All Goa Panchayat and Municipality level heavy ball cricket tournament organized by Shiv Maratha Sports and Cultural Club. This is the first tennis ball cricket tournament where we have leg before the wicket. Oh, what a strike! That is smashed with extreme power straight over the bowler's head for a boundary. This is good striking. The third boundary for the batsman. Viraj was dropped in the very first over. And he's making Riddhi Warriors pay the price for the drop catch. Oh, what a shot. Once again. Slightly aerial this time through the covers. And consecutive boundaries for Viraj. This is good batting. The timing was absolutely exquisite. Wonderful batting out there from Viraj. And score moves on to 23 runs. Second over in progress. It's a wonderful start here for Gumteshwar Madgaon. Yorker length delivery, but the batsman is very good. Has dug that one out. A fuller length delivery. And once again, boundary in the same cover region. This time over the extra covers. And he's taking the full advantage of the mandatory batting power play. And he'll make it 3 in a row. 3 boundaries in a row. He's a devastating batsman, Viraj. The man in form. In fact, it's 4 in a row. 4 boundaries. This is wonderful batting here. Score moves on to 31 runs. It's a flying start here. After losing the toss, Gumteshwar put into bat. They've started off wonderfully here at the Navelim Panchayat ground. The opening battle between Riddhi Warriors and Gumteshwar Madgaon. These are very long boundaries and couple of runs completed. Oh, there's a big appeal. Big appeal. And the umpire has called for the third umpire. He'll refer it. Wonderful facilities in the modern day cricket. Even at this level, we can see 2-sided cameras. The decision is pending.
The decision is still pending. It's a very close call. It's very close. Still waiting for the umpire's decision. It's a very close call. The batsman has grounded the bat. Still a very close call. Wonderful facilities here. Multiple angles being checked. Looks like a very close call. And the decision will be out. The batsman is just found short of the crease. It took us a long time. Had to check multiple angles. The final decision is out. Viraj, a very crucial breakthrough. He was looking good. Had to run, had to respond. And a wonderful throw coming in. He almost made it. Just an inch shot. And all credit to tenniscricket.in, India's first website, for seeing this tennis ball cricket live on YouTube. And they have facilitated multiple views, two-sided cameras. And Vivek will continue. Sanket. Slight and inside edge. And straight to the wicket keeper. Was fortunate enough. Good comeback. Very good comeback here from Vivek. And that's what you need. You need a breakthrough.
to get back into the match. A wicket in the form of run out followed by a dot ball. It has to be a wide down the leg. He's bowling with a very good pace. Finding the length right. Just needs to correct his line. Coming right arm over the stumps to the left-handed batsman Sanket. Short ball that's straight up. And dropped. That should have been taken. And second catch going down here for Riddhi Warriors. First, Viraj was dropped in the very first over. He smashed 4 boundaries after being dropped. And now Sanket has been dropped. An absolute sitter going down from Vivek of his own bowling. So Mateen Khan has just walked out to the middle, batting 1 down for Gumteshwar Margao. Wonderfully driven, but Sahil will cut it off. Wonderful fielding. He's a very good fielder, quick athlete. Sahil Vaingankar. Mateen Khan gets off the mark with that single. Sanket back on strike. And a wonderful delivery now. That should be a couple of runs. In fact, they don't take. That was played with a soft hand. Should have been a couple. But Mateen Khan doesn't want to take any risk. These are very long boundaries here at the Navelim Panchayat ground. And this has been a good comeback over from Vivek. He's bowled beautifully. Great comeback from him. Considered 12 runs in the very first over. And that should be another single to get going. So 3 overs gone. Score moves on to 37 runs. Just 6 coming off that last over. Wonderful over from Vivek comes to an end. And a big wicket of Viraj, the side batsman, found just short of the popping crease. Over to Ashok Naik, sir, for the next 3 overs.
हेलो हेलो। तीन ओवर का खेल समाप्त होने के बाद बॉलिंग में परिवर्तन। सामने से तेज गेंदबाज सचिन बंगारी और आते आते 2 विकेट चटकाए सचिन बंगारी ने। इससे पहले मतीन खान को चलता किया और मतीन खान के बाद लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज संकेत मोरजकर वो आउट होकर वापस। सभी दर्शकों का स्वागत, सभी मान्यवरों का स्वागत। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ प्रतीक जुड़ चुके हैं और बीच बीच में जो दोस्तों थोड़ी सी रुकावट है वो बिजली की वजह से यूट्यूब पर जो प्रक्षेपण सीधा हो रहा है टेनिस क्रिकेट जिनके ओर से, तो थोड़ा सा बिजली के गुम होने के साथ हमारे आवाज़ आपके कानों पर नहीं सुनाई दे रही है या बीच बीच में प्रक्षेपण भी आपको नहीं देखने को मिल रहा है। एक बार थोड़ी देर के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा इस टूर्नामेंट के साथ। फिलहाल और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। नरेश असोंडेकर एक अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर गुमटेश्वर मरगांव क्रिकेट टीम की ओर से, और मैदान पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई रिद्धि वॉरियर्स क्रिकेट टीम। नए बल्लेबाज मैदान पर सरवण्णा। दोपहर मैदान पर सर वामन मयेकर और वामन मयेकर के साथ सदगिरी नाइक, और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ बैठ चुके हैं जो कि दिनेश नाइक। ये त्रिमूर्ति इस अंपायरिंग के जिम्मेदारी के साथ। सामने सचिन बंगारी राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर दूर वाले छोर से आगे निकलकर एक बड़ा शॉट, लाजवाब शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गेंद निकलती हुई, और जब तक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। लंबी बाउंड्री, बड़ी बाउंड्री, एक बहुत ही खूबसूरत मैदान, हरा भरा मैदान, अच्छा विकेट, 2 रन जुड़ गए। आते आते सरवण्णा ने अपना खाते की शुरुआत की 2 रन के साथ से नॉन स्ट्राइकर एंड पर नरेश असोंडेकर, और अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से सचिन बंगारी अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। रिवर्स का प्रयास, अल्टी पल्टी, बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग। इस मैच के बाद अगला मैच होगा जो मॉर्निंग 11 और शिव मराठा, इन दो टीमों के बीच में। दोनों टीम कैप्टन आपके टीम लिस्ट और टॉस के लिए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। मॉर्निंग 11 और शिव मराठा क्रिकेट टीम, इन दोनों के बीच में आने वाला मैच होगा। दोनों टीम कैप्टन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। आगे निकले फिर से एक बार थोड़ा सा बड़े शॉट के लिए, लेकिन इस बार गेंद ने बिल्कुल चकमा दिया। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। खेल समाप्त होता हुआ 4 ओवर का, और 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 40 रन 3 विकेट पर। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी देते हुए अर्जुन, और अंग्रेजी की कमेंट्री हमारे साथ प्रतीक, और मैं अशोक नाइक। आप सभी का स्वागत। हमारे बगल में जो कि टेनिस क्रिकेट .in की पूरी टीम, जो कि गौरव सावंत के साथ गौरव कैमरामैन आपके, ओमकार, और ओमकार के साथ शुभम, ये भी जुड़ चुके हैं। बहुत ही शानदार आयोजन इस शिव छत्रपति चषक। आज से लगातार 5 दिन ये क्रिकेट का कारवां चलता जाएगा इस मैदान पर, और इसे बीच 40 टीम जो कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुकी है, और सभी दर्शकों का, इस उपस्थित सभी मान्यवरों का एक बार फिर से तहे दिल से कमेंट्री बॉक्स में से मैं अशोक नाइक आप सभी का स्वागत। गेंदबाजी में परिवर्तन, साहिल वाइंगणकर जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर। बड़ा शॉट मारना चाहते थे नरेश असोंडेकर, देखना होगा। 1 रन के लिए निकले, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। 41 पर पहुंचा 1 रन के साथ से। टोटल स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। आउट होकर वापस मतीन खान, शुरू में विराज, और उसके बाद संकेत मोरजकर जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। ये 3 बल्लेबाज गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम के वापस खेमे में। सामने सरवण्णा स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए, और बॉलिंग मार्ग पर एक 15-16 कदमों के रनअप से अपने साहिल वाइंगणकर अगली गेंद लेकर ऑफसाइड पर एक गली पर फील्डर, एक कवर पॉइंट,
एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग। ये फील्डिंग की सजावट मैदान पर। स्कोप करना चाहते थे, सफल हुए थे इस बार। गेंद को फाइन लेग की तरफ, गेंद को कलेक्ट किया विकेट कीपर ने। रन की कोई संभावना मौजूद नहीं थी। पांचवा ओवर टोटल खेल 6 ओवर का। आने वाला मैच मॉर्निंग 11 और शिव मराठा क्रिकेट टीम के बीच में। दोनों टीम जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करें। फुल टॉस गेंद इस बार, बढ़िया शॉट, ताकत बना, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। अच्छा थ्रो, सुंदर थ्रो, सीधे नॉन स्ट्राइकर इन पर। एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। 6 ओवर का मैच है, अच्छा विकेट है, आउट बेहतरीन है आउटफील्ड। और देखना होगा गुमटेश्वर मरगांव क्रिकेट टीम हाल ही में बिल्कुल अच्छे फॉर्म में है। पिछले इतवार को एक बड़ी प्रतियोगिता को जीत चुके कुरचुरम में, जो सावर्डे कुरचुरम में जो हुई थी, उस टूर्नामेंट को जीतकर इस मैदान पर। छोटी गेंद इस बार, लेकिन सही संपर्क, उतना बड़ा अच्छा संपर्क नहीं रहा। नरेश असरोंडेकर एक रन दूसरे के लिए पलटे, और जब तक मिड विकेट बाउंड्री पर थोड़ी सी ढिलाई फील्डिंग में, और दूसरा रन तब्दील किया दोनों बल्लेबाजों ने। दूर दूर जमाई गई फील्ड। 40 टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, और एक बहुत ही बड़ा आयोजन है जो कि इस टूर्नामेंट का इस मैदान पर नावेलिम पंचायत ग्राउंड पर जो आयोजन हो रहा है इस टूर्नामेंट का। आज का पहला दिन। बिल्कुल एक अंग्रेजी की बेहतरीन आवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रतीक, और इसी बीच साहिल अगली गेंद लेकर। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन इस बार। नरेश असरोंडेकर थोड़ा सा चकमा खा गए उस गेंद पर। बल्ला घूम चुका था, बाद में गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। काफी वेरिएशन कर रहे हैं गेंदबाजी में, बहुत अच्छी गेंद। थोड़ी सी परेशान जरूर किया इस गेंद के साथ, और अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर। विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप्स को चिपके हुए, हेलमेट परिधान कर चुके हैं। ओवर पेज गेंद इस बार लॉफ्ट किया, बड़ा शॉट, डीप लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। ओवर पिच गेंद आप जरूर यूट्यूब पर रिप्ले देख सकते हैं, क्या किस तरह से खेला ये शॉट। ओवर पिच गेंद हाफ वाले पर लेकर नरेश असरोंडेकर, बल्ले के बीचों बीच, ताकत थी, टाइमिंग था, और 6 रन जुड़ गए स्कोर में। 6 रन के साथ से टोटल हो चुका है स्कोर बोर्ड पर 50 रन, जो कि गुमटेश्वर मरगांव क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे होते हुए 6 ओवर का मैच। देखना होगा 6 ओवर पर गुमटेश्वर मरगांव क्रिकेट टीम कितने रनों पर जो कि स्कोर खड़ा कर देते हैं सामने रिद्धि वॉरियर्स क्रिकेट टीम के। रिद्धि वॉरियर्स के सर्वे सर्वा सर दिनेश नाइक जो परवरिम से मैच को देख रहे। दिनेश नाइक सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। और फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन दिखाई देता हुआ 10 रन प्रति ओवर बना रही है गुमटेश्वर मरगांव क्रिकेट टीम। गेंदबाजी के मोर्चे पर प्रतीक, अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, थोड़ी सी हवा में अपेश खेला था जरूर गली पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 51 टोटल स्कोर, 51 रन 3 विकेट पर। शुरुआत बढ़िया रही थी, विराज आक्रामक शुरुआत की थी, विराज ने मौका भी मिल चुका था, लेकिन उसके बाद संकेत मोरजकर जिनके ऊपर काफी दारोमदार थी, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गुमटेश्वर मरगांव क्रिकेट टीम के, वो आउट होकर वापस निकले। उनके बाद मतीन खान और नरेश असरोंडेकर और सरवण्णा, ये जोड़ गोली मैदान पर। प्रतीक सामने से गेंदबाजी के मोर्चे पर। फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन दिखाई देता हुआ, ऑफसाइड पर एक डीप लॉन्ग ऑफ, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, कवर पॉइंट, एक गली पर फील्डर। अच्छा शॉट कारपेट के साथ खेला इस बार, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे। देखना होगा हाना हाना कर रहे थे, और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, एक ओवरथ्रो जरूर हुआ था, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बैकअप हो रहा था, लेकिन तब तक 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने।
2 रन जुड़ गए और टीम के स्कोर के खाते में गुमटेश्वर मरगांव क्रिकेट टीम के। आखिरी ओवर का खेल मैच का चलता हुआ हमारे साथ अर्जुन जो कि पूरी जानकारी देते हुए इस स्कोर के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और मैं अशोक नाइक और मेरे साथ प्रतीक। आप सभी का स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। फुल टॉस गेंद, बड़ा शॉट इस बार नरेश असुरुंडेकर, कैच छूटा। आज रिद्धि वॉरियर्स की अगर फील्डिंग की बात की जाए तो फील्डिंग साथ नहीं दे रही है। ये तीसरा कैच प्रतीक लगभग मैच में पूरे छूटा रनआउट के रूप में। जो स्ट्राइक एंड पर कोशिश जरूर की थी नरेश असुरुंडेकर ने, वो सफल रहे और सरवण्णा को वापस जाना पड़ेगा। चौथे विकेट का आगाज होता हुआ मैदान पर टॉस हुआ था। टॉस के साथ कप्तान ने चर्चा की थी कम से कम 60 के जो कि भीतर रोकने की कोशिश हम जरूर करेंगे, और प्रतीक लगभग वही कोशिश उनकी सफल दिखाई देती हुई। अगर और बेहतरीन फील्डिंग करते, कैच को पकड़ते तो और जो कि स्कोरबोर्ड पर स्कोर अलग सा होता निश्चित रूप से। तीसरा कैच छूटा। फिलहाल नरेश असुरुंडेकर मैदान पर आउट होकर सरवण्णा वापस, और नरेश असुरुंडेकर का साथ देने के लिए कप्तान मोर्चे पर दिखाई देते हुए अक्षय बल्लेबाजी करने के लिए। टोटल स्कोर हो चुका है 54, 54 रन। अक्षय नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। सामने नरेश असुरुंडेकर कट करना चाहते थे इस बार, और शॉर्ट पिच बाउंसर थोड़ी सी उछाल ली, गुडले स्पॉट पर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अंतिम ओवर, अंतिम ओवर का खेल मैच का चलता हुआ नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके। कप्तान टीम के गुमटेश्वर मरगांव क्रिकेट टीम के अक्षय। इस बार ब्लॉक होल में बल्ले से लगी गेंद फाइन लेग की तरफ निकली, 1 रन के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे, देखना होगा थ्रो जब तक आता। 1 रन के साथ से दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। थोड़ी सी मिसफील्डिंग, मौका जरूर था रनआउट का। 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में गुमटेश्वर मरगांव क्रिकेट टीम के, और 2 रन के साथ से स्कोर पहुंचा टोटल 56, 56 रन 4 विकेट पर। 56 रन 4 विकेट पर पहले बल्लेबाजी कर रही है गुमटेश्वर क्रिकेट टीम। टॉस जीतकर फील्डिंग मैदान पर रिद्धि वॉरियर्स, पंजी क्रिकेट टीम। तेज गेंद करने के प्रयास में इस बार अपने लाइन पर भटके ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन और मिलता हुआ स्कोर में 1 रन के साथ से 57 पर पहुंचा टोटल स्कोर 57, 4 विकेट पर। एक अच्छा टोटल है, फाइटिंग टोटल है, जिस तरह से आउटफील्ड है, जिस तरह से विकेट है, और सामने रिद्धि वॉरियर्स भी एक अच्छी टीम के लिए जानी जाती है, बहुत अच्छी टीम। फुल टॉस गेंद, लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ। मिड विकेट लगभग डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, बहुत ही सुंदर फील्डिंग। 1 रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, और जब तक नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो आउट करार घोषित किया। अब तो विकेट नंबर और 1 मिलता हुआ अक्षय वापस, 5वां धक्का लगता हुआ गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम को, और खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ टोटल 6 ओवर का। आइए प्लीज मॉर्निंग 11 कैप्टन, और मॉर्निंग 11 के साथ शिव मराठा क्रिकेट टीम कैप्टन, शिव मराठा क्रिकेट टीम कैप्टन, जल्द से जल्द दोनों कैप्टन आइए टॉस के लिए संपर्क करें। तो अर्जुन, टोटल स्कोर हो चुका है 58, और टारगेट रखा है रिद्धि वॉरियर्स क्रिकेट टीम के सामने 59, यानी 59 रनों का मैच को जीतने का। फिलहाल किस तरह से गेंदबाजी, किस तरह से बल्लेबाजी होती है, क्या फील्डिंग होती है मैदान पर, एक बार फिर से जुड़ जाते हैं कमेंट्री बॉक्स में। आगे का विवरण सुनाते हुए माइक्रोफोन पर प्रतीक, प्रतीक आमोणकर जो कि कमेंट्री बॉक्स में। आइए प्रतीक, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत।
And a wonderful organization here by Shiv Maratha Sports and Cultural Club, organizing their first All Goa Panchayat and Municipality level tennis ball cricket tournament. The big tournament opener held between Riddhi Warriors Panjim and Kumteshwar Badgaon. Riddhi Warriors, they won the toss, elected to field first. Their skipper said during the toss that they would like to keep them under 60 runs. And they have done exactly that. Just a total of 58 runs. Viraj was looking absolutely devastating. He opened beautifully. Was found short of the popping crease. Run out. And the game changed massively after the big wicket of Viraj. We saw a wonderful comeback from the side of Riddhi Warriors. I request them to kindly send your batsman to the crease. Umpires, Vaman Mayekar. Umpires are very particular. They've given a timeline of 25 minutes per innings. The fielding side, kindly take a note. You'll only get 25 minutes to bowl your 6 overs. As we can see, the two batsmen have just walked out to the middle. They're chasing a target of 59 runs in 6 overs. Gurushan on the bowling mark. Sachin Bangari along with Amit Fatarbekar. The two opening batsmen for Riddhi Warriors Panjim. The team coming from Panjim. And the chase just about to begin. Places the umpire. That's taken the outside edge. Should just be a single. Sachin Bangari gets off the mark with that single. Wicket keeper keeping the stumps with the gloves on. Amit gets on the strike. A reverse attempted. You can also appeal for leg before. I request Morning 11 to kindly come for a toss. The captain, please come for a toss. Here at the commentary box, we are waiting. Morning 11. Looks like the ball was going down. Oh, what a shot. And straight into the hands of Sanket. Sanket Morajkar accepts the catch. Well, these are very long boundaries. The 10x ball normally tends to travel a lot. It looked like it did not time it that well. Needed a very good connection to clear that boundary. And an absolute sitter. An easy catch here to Sanket. No mistake from the fielding side. And a first breakthrough here. Big wicket of Sachin. Going down early in the very first over.
The power play is on. And he only finds that fielder at the long on region. Straight into the hands. And Vivek comes out to the middle. Too early. Vivek Karapurkar, the new man in. And up goes the finger. It's 2-2. Amit Fatharpekar now departs. It's a wonderful start here for Gumteshwar Madgaon. They're defending a target of 59 runs. And what a start. What a wonderful start here. 2 wickets and 2 balls. Gurushan providing his side with a wonderful start. Just the kind of a start they needed. 2 wickets and 2 balls now, and he's on a hat-trick here. And with departure of Amit Fatharpekar comes out Sahil Wangankar. Another all-rounder. Riddhi Warriors in a sort of a trouble here. They need a rescue here. They need a partnership. Sahil Wangankar will have to play a big innings to see his side home. And a wonderful shot. But should just be a couple of runs. Very good running between the wickets. We also have replay. You can view replay of every wicket falling down or every boundary being smashed. The replay being telecasted courtesy tenniscricket.in. The first. Oh, it's a slow delivery and very well picked up by Sahil Wangankar. And it's a boundary. 1 bounce over the ropes. He's not holding back. Intentions are clear. They need to score at 10 runs every over. And Sahil realizing that, taking the full advantage of the batting power play. End of the first over. Score moves on to 8 runs.
ना चल ना चेक चेक सध्या उलय गे तो दुसरं चालू करता पिता नावाजातलो हा पिता नावाचा आवाज due to power issues, due to power fluctuations, we are facing a few issues here. Technical problems in broadcasting the match. 4 boundaries in a row here for Sahil Vaingankar. He's looking in great touch. And has cleaned him up. What a delivery. Sahil was looking well set. Was playing so beautifully. Boundaries all around. Once again going for that switch hit, a reverse sweep. And faces a pinpoint yorker from the skipper of the side, Gumteshwar Madgaon. And Hidipats after playing a wonderful cameo for his side. Due to power fluctuations, we are facing a little issues with the broadcasting and commentary. We were shifting on to the second generator. That took us a while. And score moves on to 26 runs. It's a wonderful start here. Good comeback. Sahil has provided them the momentum they just needed. Riddhi Warriors, Panjim. But a good comeback, a very good comeback from the skipper of the side, Gumteshwar. He has provided them with an important breakthrough. I request Morning 11 to kindly come for a toss. The captain of Morning 11, kindly come near the commentary box for a toss. Great delivery. Oh, it's over. It's over the fielder at point. You can't really do anything about it. An awkward bounce to the fielder. You just can't help it. Very unfortunate. Kurushan has continued his spell. Vivek, the man on strike. They need to get going. Couple of runs for him. Oh, too late. It's too quick. Kurushan, this is wonderful bowling. The ball passes the batsman in a flash. This is pacey bowling here from Kurushan. Vivek was too late to play that shot. The ball is skidding on. And again you can see Vivek being too late. There is a slight moisture on the pitch. And that is what is helping the bowlers here. The ball is skidding on beautifully. And wonderful bowling being displayed here by Gurushan. And again, another single taken. Score moves on to 30 runs. Vivek back on strike. Vivek and Rajesh Gosavi, the two batsmen. Oh, short ball. The timing wasn't right.
and should be a couple of runs again. 3 overs gone by. Score moves on to 32 runs. 32 runs for the loss of 3 wickets. And over to Ashok Naik, sir, for next 3 overs. Hello. पर आने वाले 18 गेंदों का खेल बाकी अभी भी, और मैच को जीतने के लिए टोटल अभी चाहिए 27 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन, संकेत कोरगांवकर खुद का पहला टीम की ओर से चौथा ओवर। रिवर्स की कोशिश इस बार, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। संकेत गेंदबाजी करते हुए सामने कप्तान टीम के राजेश गोस्वामी, रिद्धि वॉरियर्स क्रिकेट टीम के Check. अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर फिर से रिवर्स का प्रयास इस बार फिर से असफल रहे, और जब तक विकेट कीपर मतीन खान आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, लेग बाइज के साथ 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। खेल चौथे ओवर का चलता हुआ, टारगेट है मैच को जीतने का 59 रनों का टोटल पहला मैच। और पिच गेंद इस बार डाउन द ग्राउंड आगे निकले, और जब तक फील्डर आते, गुरशंत गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 रन पूरा किया इस बीच में दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल डबल के साथ रन को आगे बढ़ा रही है रिद्धि वॉरियर्स क्रिकेट टीम। 59 का टारगेट है मैच को जीतने का। 6 ओवर का मुकाबला, मैच मैदान पर पहला जो कि इस टूर्नामेंट का, और चौथे ओवर के जो कि खेल के मैदान पर शुरुआत होती हुई। अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से संकेत अगली गेंद लेकर, सामने बल्लेबाजी पर राजेश गोस्वामी, नॉन स्ट्राइकर इन पर विवेक कारापुरकर। ऑन साइड पर खेला इस बार स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में, पहला रन बड़ी तेजी के साथ डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, जब तक गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, नॉन स्ट्राइकर इन पर अच्छा थ्रो, लेकिन तब तक अपने क्रीज में सुरक्षित थे दोनों बल्लेबाज। 2 रन पूरे करते हुए टीम के स्कोर के खाते में 2 रन जुड़ गए। 2 रन के साथ से टोटल आगे बढ़ता हुआ 59 रनों के जवाब में 36 रन, 36 लॉस ऑफ 3 विकेट। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, 2 अच्छे टीम आमने सामने, 40 टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। आज का पहला दिन इस नावेलिम पंचायत ग्राउंड पर यह मुकाबला मैदान पर चलता हुआ, और एक बहुत ही बड़ा आयोजन शिव मराठा स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब जिनकी ओर से इस टूर्नामेंट का पहला मैच गुमटेश्वर मरगा और रिद्धि वॉरियर्स, इन 2 टीमों के बीच में शिव छत्रपति चषक फिर से कोशिश रिवर्स की, लगातार कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर के साथ एक स्लिप पर फील्डर, एक गली पर, एक कवर पॉइंट पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर। गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी 58 रन, 59 का टारगेट रिद्धि वॉरियर्स क्रिकेट टीम के लिए। इस बार फिर से रिवर्स की कोशिश, जोरदार अपील, सामने पा गए,
और एलबीडब्ल्यू करार घोषित करते हुए इसी के साथ और एक सफलता मिलती हुई घुमटेश्वर बड़गांव क्रिकेट टीम को। लगातार कोशिश थी राजेश गोसावी की इस शॉट के लिए, लेकिन इस बार गलती कर बैठे, सामने पा गए और गेंद सीधी जाके जो कि पैरों पे टकराती हुई सफलता मिलती हुई चौथे विकेट का आगाज होता हुआ रिद्धि वॉरियर्स क्रिकेट टीम। आप जरूर यूट्यूब पर इस रिप्ले को देख सकते हैं, किस तरह से गेंद थी, कहां पर गेंद थी, और वापस जो कि गुरु कृपा साउंड्स सर मीनानाथ केरकर, बहुत बहुत धन्यवाद केरकर आपका इस कमेंट्री बॉक्स में से। और बॉलिंग में परिवर्तन और एक दिखाई देता हुआ वरद दाबोलकर जो कि गेंदबाजी करेंगे। 4 ओवर समाप्त हुए टोटल, आने वाले 12 गेंदों का खेल बाकी, और 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 36। तो आने वाले 2 ओवर का 12 गेंदों का खेल बाकी और मैच को जीतने के लिए 23 रन, 12 बॉल्स 23 रन्स। ओवर पिच गेंद इस बार मिस टाइम कर बैठे, गेंद हवा में अपने फॉलो थ्रू में गेंद के नीचे, और एक सुंदर कैच, बहुत ही अच्छा बैलेंस किया, संतुलित किया आपको। होकर 22 मार्च को पिछले साल दोस्तों लॉकडाउन हुआ था, और उस लॉकडाउन के बाद सब कुछ थम चुका था, और उसके बाद जो कि एक बड़ी प्रतियोगिता थी डबल विकेट का, जो कि क्रिकेट का टूर्नामेंट रहा था, और दिनेश नाइक जिनके सर्वे सर्वा थे। अच्छी गेंद इस बार, स्लो और वन, बल्लेबाज को बिल्कुल चकमा दिया, फ्रंट फुट पर गेंद को हल्के से खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छी किस्मत, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, और उस डबल विकेट में संदेश ठाकुर और आपाली कलंगुटकर ने जो कि ट्रॉफी को हस्तगत किया था। और उसके बाद से एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट हो रही है। हाल ही में आने वाला एसके जॉगिंग का एक बड़ा टूर्नामेंट जो हो रहा है मापसा बुड़गेश्वर मैदान पर, डे नाइट का क्रिकेट का सफर रहेगा वो। इस बार कट करना चाहते थे गेंद को ऑफ साइड पर, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर मतीन खान ने कैच को लपेटा, और गुमटेश्वर बड़गांव क्रिकेट टीम को मिलती हुई और एक सफलता। डीजे
थैंक यू डीजे। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज और एक मैदान पर सूरज पुजारी, सफलता मिलती हुई वरद दाबोलकर। अच्छी गेंद, बिल्कुल बढ़िया लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। कैप्टन मॉर्निंग 11 kindly come for a toss. कैप्टन मॉर्निंग बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर, ऑफ स्टंप पर लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को कोई बड़ा मौका नहीं दे रहे हैं। इस बार फिर से मिस टाइम कर बैठे, देखना होगा गली पर, लेकिन ओ अपने फॉलो थ्रू में निकले थे। नरेश असरोंडेकर सामने थे, वरद दाबोलकर जो कि कैच की कोशिश में थे, और 2 रन इसी बीच में जो कि स्कोर के खाते में जुड़ते हुए बड़ी देर के बाद 2 रन रिद्धि वॉरियर्स क्रिकेट टीम 2 रन के साथ से आगे बढ़ते हुए टोटल 38 रन पर पहुंची टोटल। और खेल इसी के साथ जो कि चलता हुआ मैच का विकेट जो कि चेक हो चुके हैं, कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर पर बहुत दबाव आ चुका है। बल्लेबाजी में 59 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने का, और देखना होगा किस तरह से ये मुकाबला समाप्त होता है इन दोनों के बीच में। फिलहाल निचले क्रम तक बल्लेबाजी है रिद्धि वॉरियर्स क्रिकेट टीम के, लेकिन देखना होगा सामने से गेंदबाजी हो रही है, बहुत अच्छी गेंदबाजी। गुरुशंत ने बढ़िया गेंदबाजी की इस मैच में। बड़ा शॉट, ओवर पेस गेंद, इस बार लॉफ्ट किया डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, फील्डर गेंद के नीचे, और इसी के साथ गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम को मिलती हुई और एक कामयाबी। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग हो रही है मैदान पर, और इसी के साथ फील्डिंग गेंदबाजी के साथ दबाव बढ़ रहा है मैदान पर, बिल्कुल जो कि मैदान पर। और एक नए बल्लेबाज कदम बढ़ाते हुए आउट होकर वापस, लगातार विकेटों का सिलसिला मैच में जारी रहा दोनों टीमों के बीच में। फील्डिंग बढ़िया रही, सामने अगर विराज का कैच शुरू में पकड़ते तो और कम टोटल का चेस का सामना करना पड़ता रिद्धि वॉरियर्स क्रिकेट टीम को, लेकिन वो कैच थोड़ा सा निश्चित रूप से महंगा भी मैदान पर साबित हुआ। लेकिन 59 का टारगेट 6 ओवर के बाद, आउटफील्ड बहुत अच्छा है, विकेट अच्छा है, तो इस बल्लेबाजी के साथ ये रन होने चाहिए मैदान पर। फिलहाल और एक नए बल्लेबाज मैदान पर कदम बढ़ाते हुए। बॉलिंग में परिवर्तन, सामने से दूर वाले चोर से नरेश सोरंडेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर। नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, चित्रा। राइट आर्म ओवर द विकेट, नरेश सोरंडेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, बल्ले के बीचों बीच, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कोई मौका नहीं, गेंद चली गई 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। साउंड सिस्टम जो मीनानाथ केरकर गुरु कृपा साउंड से। 5 गेंदों का खेल बाकी, और 5 गेंदों में चाहिए 15 रन मैच को जीतने के लिए। 5 गेंदों में 15 रन। अच्छा शॉट, इस बार गले की तरफ, फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 4 गेंदों का खेल, 14 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए इन आने वाले 4 गेंदों में, और उसके बाद तुरंत अगला मैच खेला जाएगा मैदान पर। एक काफी मौका छूटा था शुरू में जो कि विराज का, उसके बाद 4 चौके लगाए थे विराज ने, और वो कहीं ना कहीं रिद्धि वॉरियर्स को थोड़ा सा महंगा मैदान पर साबित हो रहा है। अगली गेंद इस बीच में, बड़ा शॉट, इस बार बिल्कुल बेहतरीन गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। संकेत मोरजकर गेंद को रोक नहीं पाए, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। 4 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में रिद्धि वॉरियर्स क्रिकेट टीम के, और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 49, 10 रन।
पति चषक शिव मराठा स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट का पहला मैच और पहला मैच कांटे का मुकाबला मैदान पर। बहुत बेहतरीन शॉट हाफ वॉली पर लेकर इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर संकेत गेंद को उठाते फील्ड करते पहला रन बड़ी तेजी के साथ सुंदर थ्रो दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और अंपायर का इशारा जो कि थर्ड अंपायर की और रन आउट का जो कि अपील मैदान पर हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन जो सुविधा इस टेनिस क्रिकेट .in का जिनके ओर से गौरव सावंत उनकी पूरी टीम के ओर से जो कि आप रिप्ले पर जरूर देख सकते हैं क्या हुआ मैदान पर, किस तरह से अच्छा थ्रो रहा, किस तरह से विकेट कीपर ने स्टंप्स को बिखेर दिया। तो सफलता इसी के साथ एक रन मिल गया स्कोर के खाते में और आने वाले अब मात्र खेल बचा है सिर्फ 2 गेंदों का और 2 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 9 रन। 2 गेंदों का खेल बाकी और 2 गेंदों में 9 रन इस मैच को जीतने के लिए रिद्धि वॉरियर्स क्रिकेट टीम को। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर कदम बढ़ाते हुए नरेंद्र, 2 गेंदों का खेल बाकी और 2 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 9 रन। नरेश असुरनेकर अपने फील्डिंग को सजा रहे हैं। ऑन साइड पर एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर ऑफ साइड पर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर। 2 गेंदों का खेल बाकी। यह गेंद काफी प्रतीक निर्णायक रहेगी इस मैच की। नरेश असुरनेकर अपनी बॉलिंग बार पर टारगेट 59 का, 2 गेंदों का खेल बाकी मैच का अंतिम ओवर के। अच्छी गेंद, पुलर लाइन की गेंद, इस बार ऑफ स्टंप को छोड़कर निकले गेंद विकेट कीपर मतीन खान के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। क्या मुकाबला रहा मैदान पर, बढ़िया शुरुआत थी, लग रहा था आसानी के साथ रिद्धि वॉरियर्स कदम बढ़ा रही है जीत की ओर, लेकिन फील्डिंग में कमाल की गुरुचंद ने, गेंदबाजी में कमाल की वरद दाभोलकर ने बहुत ही किफायती गेंदबाजी की। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, गेंद हवा में, संकेत मोरजकर गेंद के नीचे लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच को लपेटते हुए और इसी के साथ सफलता गुमटेश्वर मरगांव क्रिकेट टीम को। और ये पहला मुकाबला मैदान पर चल रहा है और इस पहले मुकाबले में 800 दर्शक जो कि YouTube पर इस क्रिकेट के टूर्नामेंट का मजा ले रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत। मैं कमेंट्री बॉक्स में अशोक नाइक और मेरे साथ प्रतीक आपके साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल अगला मैच जो कि होगा, लेकिन उससे पहले इस पहले मैच का मैन ऑफ द मैच समाप्त हुआ। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच
वरद दाभोलकर पहले मैच के मैन ऑफ द मैच। और सम्मानित कर रहे हैं हमारे आदरणीय सर साईनाथ गावस जो साईराज गावस जो सम्मानित कर रहे हैं मैन ऑफ द मैच वरद दाभोलकर पहले मैच का। I request Varad Dabolkar to kindly come to receive his Man of the Match award. Shri Sairaj Gawas will do the honors of giving away the trophy. Shri Sairaj Gawas, one of our chief guests today for the first day. Varad Dabolkar will receive his Man of the Match award for his outstanding bowling performance. Picked up 3 wickets by giving away just 2 runs and changed the game around in favor of Teshwar Badgao. Congratulations, Varad. So the next match will be played between Morning 11 and Shiv Maratha Sports and Cultural Club. Hello, check. Hello, check.